Good afternoon. I'm back again with my another video. I hope you guys are liking my videos. So first I'm going to request you guys that please subscribe my channel, like my videos. इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है एंड मेरा मोटिवेशन हाई होता है. सो इट मोटिवेट्स मी. सो दैट्स ऑल सो एंड कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है. तो कुछ ऐसी टिप्स होते हैं जो कि आपको पता है बट कभी कभी ऐसा होता है ना, यू फॉरगेट टू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ. ऐसी वीडियोस को देख के कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखने को मिलता है. And I'm basically sharing my experience with you. So today my topic is, let me start with saying that ये जो महीना है जुलाई का महीना brings a lot of happiness in your life, blissful ness, and then you can say splendid surprises. वो surprises यही हो सकते हैं कि डॉक्टर्स हमें जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन निकाल दें या कोई ऐसी ड्रग्स निकालें जिससे लोगों को राहत मिल जाए. एंड वी शुड गेट रीड ऑफ दिस वायरस. बहुत केसेस बढ़ रहे हैं दुनिया में. पीपल आर रियली हैविंग अ टफ टाइम. बहुत कुछ जिम्मेदारी हम लोगों के हाथ में भी बनता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस. वी आर गोइंग आउट विदाउट टेकिंग द प्रिकॉशंस. गैदरिंग्स में चले जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में चले जाते हैं. Once you've been told, what precaution needs to be taken, still we are a little careless. So I request the youngsters, please be a little conscious. Your life is more important. You need to look after your life. से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता. Anything can be created और buy की जा सकती है, life नहीं की जा सकती बच्चों. So be extra conscious, take precautions, be safe, and wear the mask and use whatever you've been asked by the doctors, or that what precaution is to be taken in the when you're outside and all. So that's all, and stay safe and be blessed. So today I'm going to talk on a decency. पैसा वाले बंदा डिसेंट नहीं कहलाया जाता, या बहुत नॉलेजेबल बंदा है वो भी डिसेंट नहीं होता. Decency to me is decency defines as an action that are modest, or you can say socially acceptable, or these are the basic requirement of a good standard life in the society, you can say that. और वो जो basic जो requirements decency की होती हैं वो kind hearted, civilized person, thoughtful person, then he should be a little generous, and then थोड़ा पेशेंस वाला बंदा होना चाहिए. देन उसके बाद में थोड़ा डिप्लोमेट होना चाहिए, इन द सेंस व्हेन यू आर हैंडलिंग सम प्रॉब्लम, handle it with like a little diplomatic way, not like in a harsh way. That's to me is a decency. Of course, your way of conducting yourself, your way you carry yourself, the way you speak in the public place and all, that is also the part of a decency. कोई बहुत लर्नर बंदा होता है, उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं होती, झल्ला सा बन के चले जाते हैं. He may be a very knowledgeable person, but he cannot be called a decent person because he doesn't know how to carry himself, how to conduct himself. एक lecture बोल देना because of that he's got a lot of किताबी knowledge. No, to me he's not a decent again. If he's a soft spoken, he is not using any language, that also it matters. Of course, you can say that a very sober man. But to me, smartly dressed a person who knows to carry himself or herself, conduct himself or herself nicely, and then he behaves as per the situation demanded. If you're going in a social gatherings and all, go as per that only. The occasion कैसा है उसी के according ड्रेसअप है बंदा, उतना ही बोल रहा है. composed person रहना चाहिए. To me, a composed person is a more I can say he or she can be a decent to me. I can give you an example of a people who are to me, I can tell them that they are very decent. अभी से बताऊंगी निर्मला सीतारामन. उनका वर्ल्ड की 100 लेडीज़ के अंदर नाम है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है. नॉट बिकॉज शी इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर, ऑफ कोर्स बिकॉज शी इज़ अ पब्लिक फिगर, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यू शुड नो हाउ टू कैरी. शी कैरीज herself very well. She conduct herself very well. She's a very knowledgeable person. And then of course her dresses, the way she dresses herself, the way she carries herself, all these things are matters. Then Dr. Abdul Kalam, a very bloody great scientist and a great president of India, very learned person,
कितनी सुलझे हुए बंदे थे एंड कितने नॉलेजेबल थे. एंड अगेन व्हेन यूज टू बी ऑन द स्टेज एंड ऑल, इतनी कामनेस होती थी, काइंडनेस होती थी उनके अंदर, और चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके और सुलझे हुए बंदे की तरह से बोलते थे. फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक लेडी हैं, उनका आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम इज, आई टेल यू. शी इज़ like Nirmala, no not Nirmala, she is रोशनी नंदा. HCL की आई थिंक CEO है वो. देन इज़ नंदिता गुज्जर जो हैं, जो कि ग्लोबल हेड एजुकेशनल रिसर्च सेंटर की हैं वो. शी इज़ अ हेड लेडी. एंड देन किरण मजुमदार अगेन, वो एक सेल्फ मेड बिजनेस वूमन है. ओ माई गॉड, द वे शी कंडक्ट हर सेल्फ. एंड एक शिखा शर्मा है, एंड देयर सो मेनी अदर्स. अभी मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहा. कि अगर मैं कोई जो आप लोगों में पॉपुलर द फिल्म इंडस्ट्री वगैरह के अंदर अगर मैं किसी को डिग्निफाइड पर्सनैलिटी का टैग दूंगी तो वो अमिताभ जी हैं. मे बी वट एवर ही इज़ डूइंग फॉर हिज फिल्म, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन ही इज़ ऑन द स्टेज एंड ऑल, ही कंडक्ट हिमसेल्फ वेरी वेल. ही डजंट मेक हिमसेल्फ अ क्लाउन. वो कोई भी चीज़ ऐसी फालतू की नहीं बोलते टू मेक द पीपल लाफ एंड क्रिएट अ जोक कि वो खुद क्लाउन लगे, कभी नहीं करती. एंड फ्रॉम लेडीज़ I used to like a politician, Indira Gandhi. As a politician, I never used to like her, but as a person, she was a very elegant. She used to conduct you, when she used to be on the stage, again, and a very elegant and a very smartly well, like read person. अपने आप को prepare करके आती थी उसके ऊपर. That she knew that what she has to say or speak on the stage. So that matters. Again, very decent and elegant person. इनमें से थोड़ी बहुत अगर मुझे कुछ लगती है, हेमा मालिनी. अगेन शी मे बी वट एवर वर्क शी इज़ डूइंग, बट व्हेन शी इज़ ऑन स्टेज एंड ऑल दीज डेज, स्पेशली जब से वो ये भारतीय जनता पार्टी में हुई हैं, तो व्हेन एवर शी इज़ ऑन द स्टेज एंड ऑल, behind the stage what she does, but whenever I've seen her on the stage, she looks very composed to me, and she speaks to the point. कोई फालतू के जो क्रैक नहीं करती है, या शी डजंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हर लाइफस्टाइल, टू द पॉइंट बोल के, एंड वेरी नाइसली शी एड्रेसेस द पब्लिक. एंड बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होती हैं, बहुत क्रिस्प होती हैं अपने वट एवर शी वॉन्ट्स टू डिलीवर. सो मुझे वो भी अच्छी लगती हैं. एक दो और हैं, मतलब आई लाइक मिशेल ओबामा. यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँ, मुझे वो नहीं अच्छी लगती थी बिल क्लिंटन की जो वाइफ थी, बिकॉज वो अगेन वेरी शॉर्ट टेम्पर लेडी. आई यूज टू लाइक हु लाइक प्रिंस चार्ल्स की डायना, लेडी डायना. आई यूज टू लाइक हर बहुत. अगेन आई यूज टू लाइक दैट लेडी, वेरी एलिगेंट पर्सन. बहुत ही ऐसी जो वेल रेड भी हैं, उनको नॉलेज भी है, दे नो हाउ टू कंडक्ट, कैरी देम सेल्फ वेल एंड ऑल. सो ये चीज़ें होती हैं. मैं यंगस्टर्स से बोलूँगी कि प्लीज़ व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर ए इंटरव्यू एंड ऑल, make sure that well prepared, you're well dressed, you're well read, in the sense like आपका presence of mind, आपका IQ level बाकी दिनों से उस दिन ज़्यादा होना चाहिए, so that you can shine in the crowd, because there's so many people for that same interview who are standing in the queue after you to grab that job. So if you're smart enough और आप सबसे अलग हैं, तो you'll be like raising, you can be seen in the crowd. In the sense, the people who are sitting as a panelist, आप जैसे ही एंटर करते हैं, आपको the way you introduce yourself, the way you walk in, the way you are sitting, the way you are answering them and all, उन बहुत ज़्यादा देर नहीं रहे, बिकॉज वो एक्सपीरियंस होते हैं इन चीज़ों में. मे बी दे मे नॉट बी अ वेरी लर्नड पीपल, बट इन चीज़ में वो एक्सपीरियंस होते हैं, बिकॉज इट्स देयर वर्क ओनली टू इंटरव्यू द पीपल, एंड देन कुछ तो उनको पता लग जाता. सो दे कैन रीड सो मेनी थिंग्स. सम पीपल दे हैव a हैबिट ऑफ shrugging their shoulders, or shaking their legs, or rubbing their hands, or so many and touching sometime their hairs, and this is all the sign of nervousness. Be bloody confident, be little firm, and be clear and crisp in your dialogues, whatever you have to say, and be short and sweet in your answers, so that you aim should be that whatever you're
saying. It should be, clearly convey to them, that you're smarter than others. That should be, और उनको पता लगना चाहिए this person can handle or can do wonders, if he'll be given or she'll be given a chance to appoint on this particular, job, or you can say appoint her on जो भी वो अपॉइंटमेंट का वो जो होता है. सो जो जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं, सो दिस पर्सन कैन बी फिट एंड ही कैन हैंडल नाइसली. सो दैट शुड बी योर एम. फिर मैं बच्चों के ऊपर आऊँगी. कहते हैं ना कि देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके दे ऑलवेज हैव two things on their lips, that's smile and silence. Smile solves their problem, and silence avoid their problems. So if you are a good listener, sometimes if you don't have a knowledge on some topics, be a listener. If you know somebody, like, publicly to insult somebody, to humiliate somebody, it's very, like, normal. कोई भी कर सकता है, but like, intelligent person will try to avoid that situation on that period. You can avoid, you can call that person later and then make him understand that whatever you were saying, it was rubbish, it was not the thing, I wanted to know, or whatever, but publicly humiliating a person is, again, it's not a sign of a decency. You have to like, observe so many things, that somebody is doing wrong, and like, but still, to be a decent person, you have to have these qualities, to be a kind hearted, more generous, and thoughtfulness होनी भी बहुत ज़रूरी होती है. अब मैं बच्चों के ऊपर, उससे पहले पेरेंट्स को बोलूँगी कि प्लीज़ बी क्लियर इन योर ethos and in your culture. Some parents, they are very confused. वो बच्चों को भी confuse करके रखते हैं. आप अपने आप को पहले अपने को क्लियर कट करिए कि आपके इथोस क्या है, आपका कल्चर क्या है, सो दैट यू कैन बी एग्जाम्पल फॉर यू कैन सेट एग्जाम्पल फॉर योर किड्स. बच्चों को कंफ्यूज करके रखना. आजकल के पेरेंट्स की एक और प्रॉब्लम है कि वो वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, बट इन अ बार्गेन क्या होता है, ना तो आप वेस्टर्नाइज हो सकते हो, ना आप अपने खुद के देश के रह सकते हो. यू हैंग लाइक योर सेल्फ इन लाइक ए पेंडुलम इन बिटवीन. सो डोंट डू दैट. बी क्लियर इन योर हेड. वेस्टर्नाइज होना बुरी बात नहीं है, या वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना बुरी बात नहीं है, बट अगेन यू शुड नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट एंड देन यू डोंट नो हाउ टू सिट, स्पेशली विद द जो शॉर्ट स्कर्ट्स होते हैं, स्लिट्स होती हैं सामने और आगे. सम लेडीज़ दे सिट विद द क्रॉस लेग्स, टाइट सी पहनी होती है, छोटी सी पहनी होती है, क्रॉस लेग करके बैठ जाती हैं, या पैरों के बीच में गैप करके बैठ जाती हैं. दैट इज़ नॉट अ वे टू सिट इन द स्कर्ट. और टाइट शर्ट होगा जो कि बटन्स के बीच में से आपके कुछ दिख रहा होगा, वो झल्लापन होता है, पता है, लाइक आपका शरीर के अंग दिख रहे होते हैं, बिकॉज दैट शर्ट इज़ वेरी टाइट. when you're going out and all, especially for the formal parties and all, make sure that you see yourself in the mirror before you leave the house. कोई शर्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो जाता जिससे कि आपकी किसी बॉडी का जो पार्ट है वो रिवील हो रहा है या बल्ज आउट हो रहा है. सेम फॉर द स्कर्ट ऑल्सो, इट शुड बी टू टाइट. सिट विद द both the knees should be closed and tilted towards a right or a left, and then you can cross your feet from the bottom. That's the way to sit in the skirt, जितना मैं जानती हूँ. Same if you are wearing a pant or a sari or a salwar suit, dress as per the occasion. Not like overtly dressed also, it doesn't give you the it conveys a wrong message कि अरे बंदा अपना या तो कपड़े दिखाना चाहता था या कुछ, because that gathering demand is not a heavy clothes or a very western clothes. तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट बी मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग गुड. अगर आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, वेल एंड गुड, but don't unnecessarily wear just because your husband told you, or somebody else was wearing, so you're copying them. So you're getting carried away just because आपकी friend ऐसा पहन रही है, but it's not looking good on you. You cannot carry yourself. You're not confident to carry in yourself in that dress. Forget it. Wear whatever you want, whatever you feel good, and you can carry yourself and you can be confident about yourself.
That should be, that is a decency, and the word should be washed when you're in the public gatherings and all, you know. बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि कोई टॉपिक चल रहा है एंड यू नो यू जंप इनटू दैट, यू डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक, बट हम लोग क्योंकि सम पीपल दे हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, वो बोलते रहेंगे एंड यू नो यू end up making yourself a clown or a fool in that. Be a listener. अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता हो, और if you want to show your dignity, or you can say you want to maintain your dignity, or you want to be called as a sophisticated or a mature person, then you have to be a listener. That time maintain the silence. That's going to repay you, and it may lead you into a like, you know, some very good, you know, compliments will be given by somebody, you know, oh my god, you know, that person was so elegant, so nice, you know, he was a very, or she was a good listener and she kept listening and all, you know. Some other was these kind of, if you know something about that, of course, you know, share your feelings, but it should again be crisp and clear. Speak less, कि कोई गलती ना हो जाए, आपकी अपनी डिग्निटी नीचे ना चली जाए, दैट शुड बी योर एम. फिर अभी मैं बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ, लाइक मैं आप लोगों की अपनी भाषा में समझाती हूँ. दोज हु आर, यू नो, इन अ वर्ज ऑफ, यू नो, डिसाइडिंग देयर करियर्स, 12th के बाद में अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हैं. लाइफ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम and most of the students, they fail in this. You know why? Because they try to copy others. They forget, you know, every person has a different question paper. यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का मतलब पता क्या है? योर स्ट्रीम्स. आई मीन, यू नो, यू हैव अ डिफरेंट थिंग इन योर हेड जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रखे हो. सपोज इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, और योर फ्रेंड वांट्स टू बी अ इंजीनियर, यू लाइक, यू नो, बिकॉज योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू, बिकॉज पेरेंट्स की भी लाइक, यू नो, इन बिटवीन में वापस रुक के कहती हूँ, बहुत गंदी आदत होती है हम लोगों की कि वी ट्राई टू कंपेयर किड्स विद अदर, यू नो, लाइक हमारी बहनों के बच्चों से या रिलेटिव से या किसी नेबर के बच्चे से. नो, try to find the capabilities in your kids, you know, whatever he's worth or she's worth of it. उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, उन्होंने अपना कुछ गोल बना रखा होता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी वट एवर यू हैव डिसाइडेड तो वही होना चाहिए. नो, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर और कल तुमने सारे एग्जाम नहीं क्लियर करे तो तुम कुछ भी नहीं हो. प्लीज़ डोंट डू दैट. यू कैन ट्राई, देयर सो मेनी. यू कैन बी अ बैंकर, you can be a professor, you can be an engineer, you can be a astronaut, you can be a bloody you know, in railways, बैंक में अकाउंटेंट्स वगैरह के कितनी कुछ है आजकल. यू लाइक देयर सो मेनी स्ट्रीम्स. सो डोंट पीपल लाइक, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, यू नो, व्हेन दे गेट देयर रिजल्ट्स एंड ऑल, यू नो, जो परसेंटेज उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी या पेरेंट्स ने जो उनकी इमेज बना रखी थी अपने, उनमें दे कैन नॉट, यू नो, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पेरेंट्स, और दे कैन नॉट रीच द यू नो दैट मार्क व्हाट दे हैव डिसाइडेड फॉर देम. कि मैं 98 ले नहीं लेके आया, कम आ गए, एंड दे, यू नो, एंड अप सुसाइडिंग देमसेल्फ, और दे गो इनटू अ डिप्रेशन. व्हाट इज दिस? Are you really freaking serious? There's so many things. Look into yourself. And पेरेंट्स को भी उस समय बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए. बी पॉजिटिव विद देम, यू नो, कीप सपोर्टिंग देम. वन डे, यू नो, द टाइम विल कम, यू नो, दे विल फाइंड देयर डेस्टिनेशन, दे विल फाइंड देयर गोल, दे विल रीच देयर. और बच्चों अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, छोटा मोटा बिजनेस भी कर लोगे. आपके अंदर, यू नो, पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. यू कैन अचीव वट एवर यू वांट. एम शुड बी दैट, यू नो, आप एक अच्छी नौकरी करके और एक, यू नो, डिसेंट पर्सन की ज़िंदगी जिएं जिसमें आपकी जो भी डे टू डे लाइफ की चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी एरोप्लेन लगो या हर रोज़, यू नो, डेस्टिनेशन तुम्हारी जो घूमने की हो वो फॉरेन कंट्रीज़ हो. नो, इंडिया में भी बहुत सुंदर जगह है. यू अपने आप को इतना पहले तो केपेबल बनाओ कि पहले तो मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूँ, एक घर ले सकूँ, अपना अच्छा खाना खा सकूँ, ढंग के कपड़े पहन सकूँ. कॉस्टली कपड़ों में, कपड़ों की कोई वो नहीं होती. 100 रुपये का कपड़ा भी बहुत स्मार्ट लग सकता है अगर आपको पहनने का तरीका और आप खुद में, आप में कॉन्फिडेंस है टू कैरी योरसेल्फ. सो मेक श्योर दैट, यू नो, बी काइंड, बी जनरस, and you know, like, you know, work hard to achieve your destination. Don't get frustrated, don't get carried away, don't copy others, have your own identity. मैं पेरेंट्स से बार बार ये कहती हूँ कि प्लीज़ बी विद योर किड्स, motivate them, encourage them whenever they need, you know, and stand
behind them like a pillar, because जब तक वो settle नहीं हो जाते, they need your help and they need the positivity in you कि you are there to push them ahead. So that should be our aim in our life. So that's all for today, and I hope you guys going to get some tips out of this video. And मैं एक बार फिर सारे लोगों से, those who are in a position to help the poor ones, please come forward, help the poor people, the needy ones. भगवान आपको देगा बहुत ज़्यादा. आजकल थोड़ा काइंड हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है. लोग बाग अपने जॉब्स नहीं हैं, लोगों के घर में रोटी खाने को नहीं है. सो दैट्स ऑल, वट एवर वी कैन हेल्प इन वट एवर सेंस, इन द सेंस पैसा ना दे के खाना दे दिया, कुछ और दे दी, दवाइयाँ दे दी, कुछ थोड़ा सा दिल बड़ा करके प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द पीपल. I'm requesting you. And of course, the major thing is please look after your health. Take precautions, avoid the gatherings, avoid the public places. You can save your life. That's all for today, and I hope and pray for you all that stay safe and blessed.